Sorry for the interruption. I'm audible to everybody. Let's start. So, of course, as all the no voice. No voice. उसकी लोकल प्रॉब्लम ठीक हाँ हाँ जस्ट वेट उसको आगे Usman, please wait. I think no, fine. Okay. This will be, of course, the sequence of the talk which I am going to have. Now, as we know that from our basic FSC knowledge, analytical chemistry is that branch which deals basic with the methodology and of course the instrumentation. I've given. We have given. Kurat, we have already given rights. So analytical chemistry, I was saying that is a branch which deals with the methodologies and the instrumentation which are used, of course, for the separation, identification. ये थोड़ा सा नहीं हो रहा सर. So it deals with the methodology, instrumentation which are used for separation, identification, and of course the quantification of the different analytes that we use in our routine work. Sorry, today we have performing it on different forums, so we are going to have big problems. So, so as we know that the analysis which we carry out, they are basically of the two types. One is the qualitative one, and the qualitative one is that which deducts the only the identification of the particular analyte. It means that only the presence and the absence of a particular analyte or in. Please mute your voice. Kindly, जरा किसी का mic खुला हुआ है. Okay. And the quantitative analysis is that analysis which basically determines the numerical values or the concentration of a particular type of analyte. So this is our basic concept about the things which we have. One slide I have intentionally introduced in this lecture, that is about the history. At least we should know what is the basic history of the analysis. And the first instrumental analysis which was carried out, it was in 1867, and it was on the flame emission spectrometry. And it will be surprising that it was done by two physicists. These were the physics people, and their names are Robert and Gustav, and they are the people who actually discovered two elements, that is the cesium and rubidium. So they were the two first people who performed first instrumental analysis on flame emission spectrometry. Then, of course, most of the major developments in analytical chemistry was carried out after 1900. And based on this, the instrumental analysis became progressively dominant in the field. And in particular, the basic spectroscopic and spectrometric techniques which were introduced were in the middle and the late part of 20th century. During 1990s, most of the techniques which were available at that time, they were combined together to form hybrid techniques which were helpful in achieving the complete characterization of the samples. And finally, during the later part of the 20th century, we saw expansion of the application of analytical chemistry to forensic, toxicology,
histopathology, and molecular biology. So my idea was just to give you a basic, very basic concept. What is the history of analytical techniques which we are doing? I hope so it's clear. Now, the different types of analytical methods. So there are basic two types of methods. One are called historic methods, and the other are the modern methods. It's just my classification that what are historic methods, it's not mentioned, but I just want to introduce because basically I'm also up from history, because it's a long time that I'm in this specialty. But I just want to know that when we started our career in 1992, so there were certain things which were performed at that particular time. And of course, they have vanished. If you are history, we are prehistorical. So I just want to add something which you will not be able to, I think, find in your books. So just today's lecture talk is just informal introduction about our subject, which we don't find in our net or our literature. And believe me, it took me a lot of pain to find at least these historic things. I have to consult my lecture notes of grading time, and then I was able to make the slide which I am going to project. Okay. Can anybody classify some historic? I think it will be difficult, but let's try. Examples of historic analytical methods. Flame emission. Yes. Okay, good. Dr. Simi from AFIP said flame emission. Anybody from Karachi and cold weather of Quetta, Kurat? Anything in your mind? I will explain you what are the methods. Anybody from Karachi, Siptan? Siptan? Anybody from Lahore? Okay. Let me introduce the things. Actually, the same thing in analytical chemistry, whatever the things we divide it into. Oh yeah, yes, spectronic. Yes, good. Sorry, we are not able to ask them. We were thinking, please write your name so that I can talk to you. So whatever the analytical methods come, we will divide it into qualitative and quantitative. This is the basic one. So the qualitative methods which we use, they are the chemical tests and the flame tests. And the quantitative methods which we use, they are the gravimetric method and volumetric method. I will introduce a very little, not in depth. So at least you should know, okay, what is that? Chemical methods are simple, the methods which we use on urine analysis. Okay, we take the sample in which our analyte of interest is present. Okay, Madam Afshan Khattak, Madam from CMA Peshawar. Okay, Madam, welcome. Thank you very much. So chemical tests, we simply know that the chemical tests are those in which our sample containing our analyte of interest, it is allowed to react with the reagent. And at the end of the reaction, we found a product. This product may be a colored compound, or it may be in the form of precipitate. And from that, we judge what is the nature of that substance and whether it is present or absent. Just like we use Benedict test for the urine and for protein analysis and ketone bodies. All these are basically qualitative or semi-quantitative chemical tests. And the knowledge of flame test, we have to go back to our FSC knowledge. What we saw in FSC knowledge, that there were certain salt analysis. I think everybody remembers that we used to take the salt of a particular element, particularly the metal one. We used to throw it into the non-flammable part of the flame, and then we used to have different type of color. I still remember that it was a very amusing thing for that in 1981-82. So we used to throw different types of salt, and we said, "Dekhte hain ji iska kya color aata hai." And from that we used to have, and the most important salt was the sodium salt, which was giving a very deep yellow color, and the
lithium salt, which was giving a crimson red color. So I remember for that. So I think it was a historical event, but we should at least know. Gravimetric method is very simple method. It is that method. It is a bit quantitative or semi-quantitative method that in which we have the mass concentration of a subject. Suppose a solution contains a chloride ion, and we want to measure that chloride ion. We will react with it with silver nitrate. The reaction between the silver nitrate and chloride occurs, and it results in the production of the white silver chloride precipitate. We remove that precipitate from a solution, and then we dry it, and then measure. And by using a formula, we indirectly calculate the amount of chloride ion present in the solution. So it was one of the techniques we used to do in chemistry during FSC department, during FSC in chemical department. Volumetric method, I have done this method with my own hand. So there was a reagent which was available with the name of quantitative penetrant reagent. At the moment, we have qualitative reagent. So there was a quantitative reagent, and the procedure was that we used to have that quantitative reagent in a burette, and beneath that burette, we used to have a beaker in which urine, in which we want to measure this glucose, sugar, and we try to heat that beaker. और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वो क्वांटिटेटिव रेजेंट को जो है ना वो उस बीकर में डालते थे, और वहां से जहां पे वो कलर डेवलप हो जाता था, एक टिपिकल कलर डेवलप होता था, उससे हम उसको स्टॉप करते थे और हम उससे मेजर करते थे कि बेनेडिक्ट रेजेंट का कितना वॉल्यूम जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, और वहां से हम एक फार्मूला लगा के इनडायरेक्टली फिर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हम मेजर करते थे. सो दिस वाज अ हिस्टोरिक इवेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. So basically मैंने बताया ना कि क्योंकि हम भी हिस्ट्री से हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस किया. Although it's not of much importance for you people to remember for the exam, but at least we should know something which we are not interested for exam. Okay, I hope I have made it a very clear concept. Now let's start our actual job. Now there are basically two methods for the estimation of analytes, and everyone knows. One is basically endpoint fluorimetric method, and the other is which we call kinetic method. But let me tell you that this kinetic method, people think that this is only for the enzymes. It's not always that. We will see that how it's different from our basic concept. And the kinetic methods, they are basically divided into three types. One is the endpoint kinetic, second is the fixed time or 2-point kinetic, and the other is the continuous monitoring. We will discuss each of them one by one, and the name suggests इस नाम के अंदर सारा कुछ जो है वो मौजूद है. So let's start. In endpoint method, as we do, it's very simple method that we take the sample which in which our analyte of interest. So let's say we take a glucose sample, we take the plasma, and in the plasma we want to quantitate glucose. So we incubate it with a suitable reagent, whatever the reagent is, and a particular type of reaction will take place. And depending upon the type of methodology, we will incubate the things or we will not incubate the things. And then we will, a colored or non-colored compound will be formed whose absorbance is measured against a specific wavelength. We have already discussed these things in light analysis and light methodologies, colors, spectrum of colors, and whatever that. But the most important thing is that whatever we measure the absorbance of that particular our test, it is always measured against the reagent absorbance. ठीक है? जो मैनुअल मेथड होते हैं उसमें आप reagent की absorbance लेते हैं और reagent absorbance जो आती है उसमें से जो आपकी टेस्ट absorbance में से वो reagent की absorbance को माइनस करते हैं. लेकिन आपके बहुत सारे जो सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें the instrument actually calculates itself the difference of absorbance of blank or reagent or our test, and then it gives the our net absorbance. And the thing is that whenever we start measuring, definitely there is an increase in absorbance till it reaches a stable value, and thus we whenever the reaction stops,
at particular time, which is calculated one, at the end of the reaction we measure the absorbance or concentration of the substance. ठीक है जी, बहुत सिंपल सी एक बात है कि जी अब सैंपल को रेजेंट को मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन हम इसको इंक्यूबेट करते हैं अगर जरूरत है, और उसके बाद फिर इसको हम मेजर कर लेते हैं. वी विल सी के मतलब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं अगली स्लाइड. लेकिन उससे पहले एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो मेरे पास आते हैं एसिड कोर्स के लिए, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जी वो मुझे फार्मूला बताएं कि जिससे जो है वो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो मतलब मैं ये नहीं डिस्क्लोज करूंगा कि कितने उसकी परसेंटेज क्या है, कि कितने लोग बताते हैं कि नहीं कितने लोग बताते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इट्स द प्रॉपर टाइम और फोरम कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि वो एक्चुअली फार्मूला क्या है जिसको हम यूज करते हैं. ठीक है जी. सो बेसिकली ये आपकी बुक्स में ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, वेयर AT is basically absorbance of test, AS is absorbance of standard, CT is concentration of test, and CS is concentration of standard. अब मैं आपको बताता हूँ, जरा मुझे पूरी स्लाइड खोल लेने दें, फिर आपको मैं बताता, आपको समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं. ये देखें, ये मैंने मतलब कहीं से ये बहुत सारी ट्यूब्स ली हैं डिफरेंट कलर्स की. ये देखें, जब भी आप एंड पॉइंट मेथड करें, ठीक है, अभी लेट्स से ग्लूकोज का, तो आपको ये ट्यूबें आपको लगानी चाहिए. वन ऑफ ब्लैंक, अदर इज ऑफ स्टैंडर्ड, देन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी लो कंट्रोल एंड और हाई कंट्रोल, और एंड देन द टेस्ट ट्यूब. एक्चुअली एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन ओनली वन टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब ओनली वन ट्यूब. यू पीपल मेक ट्रिप्लिकेट ऑफ द टेस्ट एंड देन यू गिव रीडिंग कि सर मेरी पहले टेस्ट की ये वैल्यू है, दूसरे की ये वैल्यू है. इस तरह नहीं होता. ये जो आप ट्रिप्लिकेट लगाते हैं ना किसी भी टेस्ट को आप एंड पॉइंट में, ये आप अपनी वो तसल्ली के लिए लगाते हैं. एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप 3 की वैल्यू बताएं. सो हमेशा मैंने जब भी प्रैक्टिकल में देखा है तो लोग जो है वो 3 वैल्यूज बता रहे होते हैं कि मेरी ग्लूकोज की पहली वैल्यू 5.1 है, दूसरी वैल्यू 5.8 है, तीसरी वैल्यू 6.1 है. नॉट दैट. Examiner is interested only in single value of that particular analyte. So मैं ये ट्यूब्स इसलिए आपको शो की हैं कि you should know कि ये जब आप सेमी ऑटोमेटेड पे आप काम करते हैं तो आपने ये ट्यूबें लगानी है. तो इसमें आपके पास जो वो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन जो है वो गिवन होती है. ठीक है. तो आप आखिर में जो फार्मूला लगाते हैं वो ये बिल्कुल ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे फार्मूला है, दैट इज CT इज इक्वल टू absorbance of test multiplied by concentration of standard divided by absorbance of standard. यहां से फिर आप अपना जो है ना वो करते हैं. हमें इसलिए पता नहीं चलता कि वो सारी चीजें जो है वो माइक्रो लैब में कैलकुलेट की होती हैं, और जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जी वो फार्मूला क्या है, एंड पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्लैंक. सो लेट्स मेक आवर कांसेप्ट वेरी क्लियर कि ये जो एंड पॉइंट मेथडोलॉजी में जो आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपको सबको पता है कि ये चीजों को मिक्स करें तो रिएक्शन होता है, लेकिन इस रिएक्शन को मेजर करने के पीछे एक्चुअल व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी दैट यू शुड पीपल नो. आई होप सो कि आई हैव मेड द थिंग क्लियर. इफ एनीथिंग प्लीज लेट मी नो. जी जी. नहीं मैडम, क्वेश्चन जरा रिपीट करें. आप इसका क्वेश्चन ये है कि क्या व्हाट इट स्टैंड फॉर. हाँ जी, ये होता इस तरह है कि आप नो लेट्स स्टार्ट कि आप मिसाल के तौर पर ग्लूकोज करना चाह रहे हैं. ठीक है जी. तो ग्लूकोज में आप उसका जो है वो जो रिएजेंट है, रिएजेंट जो ग्लूकोज का है उसको आप ब्लैंक की ट्यूब में डालते हैं. ठीक है जी. सिर्फ रिएजेंट, बल्कि आप ऐसा करें कि रिएजेंट जो है ना इन तमाम ट्यूब्स में डाल दें. ओके. जो ब्लैंक वाली ट्यूब है इसको आप इसी तरह छोड़ दें. कुछ इसमें जो है वो नॉर्मल साइन भी डालते हैं, लेकिन लेट्स फॉरगेट कुछ इसको आप ऐसे ही छोड़ दें. उसके बाद जो स्टैंडर्ड वाली ट्यूब है आपके पास एक स्टैंडर्ड गिवन होगा. आप उसकी जितनी भी क्वांटिटी उस लिटरेचर में दी हुई है आप उसको पिपेट से मेजर करके उस ट्यूब में डाल देते हैं. ओके. आपके पास एक कंट्रोल होगा, लो कंट्रोल होगा और हाई कंट्रोल होगा. जितना आपने अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डाला है ट्यूब के अंदर उतना ही अमाउंट ऑफ लो कंट्रोल अगली ट्यूब में आप डालें. ओके. मेरा ख्याल है इसके बारे में मैडम बात करेंगे वहां पर. ठीक है ना, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक, क्योंकि हमारे पास करने का. जी सर.
Actually, Dr. Frial is very new in our department, just a few days, and she has all the right to ask any questions and any basic question, and we are here to answer you with that. Actually, this is what Brigadier Naveed is telling you is the basis of almost all the chemical pathology. The lab which we call routine lab or hot lab, all the tests are done on this equation. So this is very important slide. Maybe we have to spend a lot of time on this slide. It will be okay. So blank means where you have only used reagent. It is also called reagent blank. Okay, and standard is a substance which is always provided along with the reagent kits, which has got the exact amount of the analyte which you are going to measure. This is, you can take the example of a meter which you use for measuring the clocks. If for example, you go to the market and ask the shopkeeper, give me 1 meter of this lawn suit. Okay? So how will he measure that meter? He has got a rod which is exactly 1 meter, and that is been measured from a platinum rod which is placed in Holland on a specific temperature pressure. That is 1 meter. So from that meter, all the meters have been derived until they have reached the markets in your city. So that is called standard. So similarly, a well-known exact amount of glucose substance is available. He will also talk about those standards. So that is called standard. So, and the control is a substance in which the amount is known, but we use it to check our procedure, to check our accuracy. And the result which we come from this control should be in the range which has been provided by the vendors, by the manufacturer. So control and standard are two very different things, and they will go along with you throughout your career. Standard is used for measurement. अब उसी की एग्जांपल लेते हैं, उसी शॉपकीपर की. वो स्टैंडर्ड तो वो है जो मीटर वो यूज कर रहा है मेजरमेंट के लिए, लेकिन एक इंस्पेक्टर आ जाते हैं, हमारे मुल्क में भी इंस्पेक्टर्स हैं जो चेक करते हैं कि ये मीटर जो है इसका ये ठीक है कि नहीं है. उनके पास अपने कुछ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जिससे वो उसका चेक करेंगे कि ये मीटर उसने कोई काटता तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हुई इसमें. Is it measuring correct 1 meter or not? So that is control. Okay, so that is control. So with the passage time, it will be more clear to you. But please, all those who are just very new to our department, you may interrupt and ask questions. Asking question is your right. Thank you. So, so the thing is, when we actually measure on ground actually the absorbance. Let's take the absorbance. We take the absorbance of low control, high control, and test. That absorbance is that has to be subtracted from, or rather, blank absorbance has to be subtracted from that absorbance, and we will get a net absorbance. So all these things हमें इनका पता नहीं चलता क्योंकि ये जो हमारा सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर है वो खुद कैलकुलेट करता है. बट वी शुड हैव अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट अबाउट कि ये जो भी कैलकुलेशन हो रही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस स्लाइड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि यू शुड हैव एन आइडिया कि हम जब एंड पॉइंट एनालिसिस करते हैं तो वी यूज दीज ट्यूब्स एंड व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड अबाउट द कैलकुलेशन दैट आई हैव शोन by using this formula. I hope I have made the thing clear. If any question? Okay, let's go next. Endpoint kinetic, I have said कि जिस तरह endpoint colorimetric होता है, it's just like endpoint kinetic. But the theory behind is that in that we
we take the absorbance at the end. Here we also take the absorbance at the end, but the story behind that starting the analyte and measuring the analyte, all the reaction, that is basically kinetic. So इसमें और बेसिक उसमें फर्क ये है कि इसमें भी हम बिल्कुल आखिर में जाकर जैसा एंड पॉइंट का मेजर करते हैं कंसंट्रेशन, इसमें भी मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो अंदर कहानी होती है इसमें स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन से लेकर आखिर तक, दैट इज प्योरली काइनेटिक. आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज काइनेटिक. ठीक है जी. So and the very beautiful example of this is the method which we use for creating, that is a Jeff method. ये जेफ मेथड हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जेफ मेथड जो है वो हर जगह घुसा हुआ है. ये क्लोरीमेट्रिक मेथड में भी होगा, ये काइनेटिक मेथड में भी होगा, आगे हम जब पढ़ेंगे कि जी 2 पॉइंट काइनेटिक उसमें भी होगा. सो द थिंग्स विल बी मोर क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, and particularly when we study the creatine, but I will definitely make it clear today. अब हम आते हैं कि basically enzymatic kinetic क्या होती है. तो we have already studied it in enzymology, but now it's a forum that right forum that I would like to make it clear here. As we know that the basic rate of reaction, as we know from our basic knowledge, that the rate of reaction depends upon the concentration of the enzyme, as we know that in that system, and that concentration of enzyme indirectly affects the amount of change which take place during that reaction. And the reaction which occurs is basically when enzyme and substrate are allowed to mix together. Okay? तो ये जो बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट को जो है वो मिक्स किया, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 है. उसके बाद जो जो इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है जी. और एक पॉइंट आएगा कि जहां पर हम जितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है ना. तो हमने अभी टीडीएम में भी ये चीज पढ़ी थी. सो दिस इज बेसिकली which is point which is called zero order kinetics. ठीक है जी. मैं फिर इसको दोबारा आपको एक और चीज मैंने दिखानी है. सो ये पॉइंट जहां पर कि जब तक मैक्सिमम पीरियड नहीं आता, या जहां पर सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होता है, इस पीरियड को हम कहते हैं लैग फेज. और जब ये रिएक्शन मैक्सिमम पहुंच जाता है और जहां पे दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जितना भी हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जो नेट चेंज ऑफ एंजाइम रिएक्शन जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर फेज. ठीक है. और इन दिस लीनियर फेज बुक में लिखा हुआ है बहुत खूबसूरत के जी, इन लीनियर फेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप जितनी मर्जी बढ़ाएं, ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा. और इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. नो, मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ. देखें, जब भी आपका कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को आप मिक्स करते हैं. ठीक है जी. और जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल 0 होगा. फिर यूं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा. और ये खूबसूरती है कि एक पॉइंट आता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पीक पे पहुंच जाता है, और इसमें अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहें, ठीक है जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है ना. तो ये पीरियड के जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन 0 होता है और उसमें जब वो मैक्सिमम पहुंच जाता है, दिस इज कॉल्ड लैग फेज. और जब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए कि जिसमें कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन रहे, that is called the linear phase. ठीक है जी. And this point is known as zero order kinetics. I hope it is understandable, क्योंकि ये आगे जाके ये बहुत हेल्पफुल होगा. मैं आपको okay. Now let's talk about what is phase time or 2 point kinetic. इसमें सिंपल सा कोई भी ऐसा अंग्रेजी नहीं है. मैं इसी पॉइंट पे चलता हूँ कि हमने एक एंजाइम और सबस्ट्रेट को हमने मिक्स किया. ठीक है जी. और मिक्स करने के बाद ठीक है जी, यही हमने किया. मिक्स करने के बाद
हमने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए कि जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यहां से हमने मतलब कोई 2 पॉइंट ले लिए जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की है, और इन 2 पॉइंट का हमने ये पॉइंट, जो पहले वाला पॉइंट है इसकी एक एब्जॉर्बेंस होगी और जो अगला पॉइंट है इसकी एक एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है ना। इन दोनों की एब्जॉर्बेंस को नोट किया, इनको डिफरेंस लिया और पर यूनिट टाइम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली 2 पॉइंट काइनेटिक। मेरी बात समझे ना, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिक्स किया और रिएक्शन चलता गया, और जब वो लीनियर के करीब हो गया, ठीक है ना, तो उस पॉइंट से जो हमारे, हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर मेथोडोलॉजी या जिस पे कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। एक लोअर एब्जॉर्बेंस का पॉइंट लेते हैं, एक हायर एब्जॉर्बेंस का। एक्चुअली जितने भी पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, हर पॉइंट के ऊपर एक एब्जॉर्बेंस होगी जो कि हमने मेजर करनी है। तो जो सेकंड पॉइंट है उसकी एब्जॉर्बेंस डेफिनेटली ज्यादा होगी जो पहले वाले पॉइंट से। सो इन दोनों पॉइंट्स की जो है ना, वो हम एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं, इनको डिफरेंस लेते हैं और पर यूनिट टाइम इसको कैलकुलेट करते हैं, और वहां से फिर आपको इधर से साइन आउट होंगे, ऐसा ना उस पे ये काइंडली इसको म्यूट कर दीजिए काइंडली। ओके, तो 2 पॉइंट काइनेटिक में होता है कि इसी रेट ऑफ रिएक्शन में जस्ट नियर टू द लीनियर फेज हम 2 कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, उन दोनों पॉइंट्स में जो ज्यादा एब्जॉर्बेंस में है उसमें से जो लोअर एब्जॉर्बेंस है उसको माइनस करके हमारे पास एक नेट एब्जॉर्बेंस आ जाती है, और इस नेट एब्जॉर्बेंस को हम पर यूनिट टाइम जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेसिकली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन दैट पर्टिकुलर एनालाइट, और इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट काइनेटिक। क्लियर जी? मैंने बहुत क्लियर बता दिया, एक क्लोरीमेट्रिक एंड पॉइंट था, एक मैंने बता दिया कि आपका एंजाइमेटिक काइनेटिक एंड पॉइंट, ठीक है ना, कि जिसमें मैंने बताया कि रिएक्शन मेजर हम बिल्कुल एंड प्रोडक्ट को करते हैं, लेकिन उसमें जो रिएक्शन होता है बेसिकली वो काइनेटिक होता है। अब 2 पॉइंट काइनेटिक में होता है कि इसी फेज में हमारा जो जस्ट नियर टू द लीनियर फेज हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, और वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है ना। वो जो आपकी किट होती है उसमें वो कैलकुलेट किया होता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो लेना है, ठीक है ना। उसमें जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है उसमें से जो मिनिमम एब्जॉर्बेंस है उसको हम माइनस कर देते हैं, वो हमारे पास एक डेल्टा एब्जॉर्बेंस आ जाती है। उस डेल्टा एब्जॉर्बेंस को पर यूनिट टाइम जब हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज द बेसिक रीडिंग फॉर दैट 2 पॉइंट काइनेटिक मेथोडोलॉजी। क्लियर? ओके, सो ये मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी, और बस इसी प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करें, ठीक है जी। मैं पहले आपको वो दिखा दूं, ये बार बार सॉरी आ रहा है बिल्कुल। अब देखें, इसके नाम से देखें, ये हम लिख रहे हैं कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग काइनेटिक एसे, ठीक है जी। जो 2 पॉइंट में था उसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए थे। अब उन 2, ये इसी तरह ही है कि मिसाल के तौर पर आप यहां से लाहौर जा रहे हैं तो आप मेजर कर लेते हैं कि जी एक लाहौर का डिस्टेंस मिसाल के तौर पर 345 किलोमीटर है, पेशावर से एक मिसाल है, और पिंडी का डिस्टेंस जो है वो लाहौर 106 है, तो 345 में से 106 हमने निकाले, ये हमारे 2 पॉइंट काइनेटिक आ गए। लेकिन वो दरमियान में क्या क्या कुछ हुआ, ठीक है ना, कहाँ कहाँ गाड़ी रुकी, मतलब हमने मतलब वो सर्विस स्टेशन पे रुके, ठीक है ना जी, वहां कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद सड़क जो है वो नीचे चली गई, सड़क ऊपर चली गई, वो तमाम जो काइनेटिक्स उस दरमियान में जो है ना उनका हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि गाड़ी पिंडी से चली और लाहौर पहुंच गई, और हमने जो लाहौर में एब्जॉर्बेंस हुई उसको एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट किया, और जो पिंडी में एब्जॉर्बेंस है उनमें को माइनस कर दिया। लेकिन दरमियान में क्या काइनेटिक्स हुई उसका हमें कोई पता नहीं। हो सकता है कि दरमियान में मतलब ये कि एब्जॉर्बेंस कहीं जो है वो 0 भी चली जा सकती है। सो इस चीज को कैटर फॉर करने के लिए जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होती है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, यानी कि हमने पिंडी से लेकर लाहौर तक हमने मल्टीपल पॉइंट्स पे जो है ना वो ऑब्जर्वर खड़े कर दिए कि जी इस पॉइंट पर यहाँ से गुजर खान गया है तो एक ऑब्जर्वर वहां खड़ा है, वहां से जेलम गया तो एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वहां से अगर हम गुजरात गया तो वहां पे एक पॉइंट खड़ा है, उससे आगे गुजरावाला में हुआ एक पॉइंट, काला शाह काकू में पॉइंट खड़ा है, तो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इन मल्टीपल पॉइंट्स का फायदा ये होता है कि हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कितना लीनियर है, क्योंकि जितना आपका रिएक्शन लीनियर होगा उतने आपके रिजल्ट जो है ना वो बेहतर होंगे।
सो इस चीज को कैटर फॉर करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। जो पुराना सिस्टम होता था, हमें याद है कि हम कभी काइनेटिक उधर करते थे स्पेक्ट्रॉनिक पे, स्पेक्ट्रॉनिक 21 एक इंस्ट्रूमेंट होता था, तो हम स्टॉप वॉच रिएक्शन मतलब रीजेंट को एंजाइम के साथ मिक्स करते थे, उसके बाद स्टॉप वॉच ऑन कर देते थे, फिर हर 30 सेकंड्स के बाद हम उसकी जो है ना एब्जॉर्बेंस मेजर करते थे, हर 30 सेकंड्स के बाद, हर 30 सेकंड्स के बाद, हर 30 सेकंड के बाद, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये होता था कि बड़ी एब्जॉर्बेंस में से छोटी निकाल ली, और मतलब वो जो भी वो सिलसिला होता था उसको हम पर यूनिट टाइम डिवाइड करते थे। उसके बाद फिर ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गए कि जिन्होंने जो है वो इस 30 सेकंड्स को खुद ऑटो कैलकुलेट किया, और अभी आपके पास जो सेमी ऑटोमेटेड हैं और जो ऑटोमेटेड हैं वो ये सारा काम खुद करते हैं माइक्रो लैब में, और ये सारा काम। सो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग काइनेटिक, के आप मल्टीपल पॉइंट्स पे ऊपर जो है ना जो आपकी एब्जॉर्बेंस होती है, वो एब्जॉर्बेंस जो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम को मिक्स बात से होती है, उसको आप मेजर करते हैं। दिस इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग काइनेटिक। हम इसको ग्राफ में भी देख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में, ठीक है जी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि बड़े जो एब्जॉर्बेंस होती है उसमें से पहले छोटी छठे पॉइंट में से पांचवें को माइनस कर दें, वो एक आएगी, उसके बाद पांचवें में से चौथी, या जो भी वहां पर फॉर्मूला है, ठीक है ना, मतलब कि करते हुए फिर इसको हम पर यूनिट टाइम जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और देन वी गेट बेसिकली द आंसर कि ये हमारी जो एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो इतनी है। एक चीज हमेशा याद रखें कि ये जितनी भी कैलकुलेशन हम करते हैं, इट गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन वी डू दीज कैलकुलेशंस, और हमारी जितनी भी मेथडोलॉजीज होती हैं व्हेन वी डू इट ऑन द लीनियर फेज, क्योंकि लीनियर फेज में आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कांस्टेंट होती है, और आपका एंजाइम जो है वो वेरी कर रहा होता है, और हमने एंजाइम को मेजर करना है। तो आपको बहुत अच्छी तरह याद है कि सर ने जो आपको पढ़ाया था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये वो होता है कि जिसमें सबस्ट्रेट एक्सेस में होता है, या सबस्ट्रेट की वैल्यू एक्सेस में होने का मतलब ये कि ये जितना मर्जी बढ़ता रहे, मतलब इंडिपेंडेंट। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर ढीठ है तो आप उसको जितना मर्जी मतलब वो डांटते रहें, वो एक स्टेज आएगी कि वो ही विल नॉट लिसन, ठीक है ना। आप जितनी मर्जी एफर्ट करें, पैसा उसके ऊपर लगाएं, आप जो कुछ भी उसके बजाय करें, लेकिन वो सबस्ट्रेट इज एक्चुअली दैट पैसा या बच्चा जो कि आप कर रहे हैं। सो ये वो अच्छा पॉइंट होता है कि जिसमें हमने एंजाइम की वैल्यू को मेजर करना है तो वी हैव टू मेजर इट ऑन लीनियर फेज। सो वी हैव डिस्कस 3 मेजर थिंग्स। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव मेजर्ड क्लोरीमेट्रिक मेथड, जिसमें हमने कहा कि एंजाइम और एंड पॉइंट, क्लोरीमेट्रिक एंड पॉइंट के जिसमें रिएजेंट और सैंपल को मिक्स करते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर कर देते हैं, और उसको हम फार्मूला जो भी लगा के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालाइट। दूसरा मैंने कहा था कि काइनेटिक मेथड में मैंने बताया कि दीज काइनेटिक मेथड्स आर नॉट ऑलवेज फॉर एंजाइम्स, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दी कि एंड पॉइंट काइनेटिक मेथड जो है वो हम क्रिएटिनिन के लिए यूज करते हैं, और भी चीजें हैं। और वहां ये होता है कि पूरी जो काइनेटिक्स होती है, जो पूरी अंदर की कहानी होती है, वो काइनेटिक होती है, लेकिन जो हम उसको मेजर करते हैं वो एंड पॉइंट करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये डेफिनेटली मेथडोलॉजी की अपनी इंपॉर्टेंस है जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मेथड होते हैं दे हैव अ बेटर एक्यूरेसी, बेटर प्रिसीजन, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट काइनेटिक्स के जी, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चली है, पिंडी से चली है, लाहौर पहुंची है, हमने देखा जी पिंडी में उसकी पेट्रोल की टंकी की वैल्यू थी वो मिसाल के तौर पर 300 थी, और लाहौर जाके जो है वो 100 रह गई है। तो उसमें से 300 में से, या जो भी आपका मेथडोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट करें, पर यूनिट टाइम उसको डिवाइड करें, तो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट काइनेटिक। और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग काइनेटिक या मल्टी पॉइंट काइनेटिक, इसको ये होता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन में जो लीनियर फेज होती है उसमें आप मल्टीपल पॉइंट्स ले लेते हैं, और हर पॉइंट पे आप उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं, और लोअर एब्जॉर्बेंस में से हायर एब्जॉर्बेंस में से लोअर एब्जॉर्बेंस निकाल के उसका नेट आप निकाल के पर यूनिट टाइम इसको डिवाइड करते हैं। सो दिस गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन और ओवर एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और एडवांटेज मैंने इसका ये बताया कि जो मल्टी कंटिन्यूअस पॉइंट या मल्टी पॉइंट काइनेटिक्स होता है, उसका एडवांटेज ये होता है कि वी आर एबल टू नो कि हमारा रिएक्शन कितना लीनियर है, और जितना लीनियर रिएक्शन होगा हमारी एंजाइम एक्टिविटी उतनी बेहतर होगी, और इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। आई होप नाउ इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर।
हाँ जी, अब हम आते हैं बेसिक जो हमारी आगे जो एनीबॉडी इस क्वेश्चन का आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक होगा और लोगों को पता चले हम किसकी बात कर रहे हैं. व्हाट आर द 3 डिफरेंट methods which are divided according to the accuracy of measurement in clinical chemistry? इसका तो जवाब दें. ये तो आपके इम्तिहान में ये बहुत दफा ये सवाल आ चुका हुआ है. मतलब इसका सवाल ये है. जबरदस्त, एक्सीलेंट जी, पास है. गुड मैडम. तो एक्चुअली दे आर द 3 मेथड्स. जबरदस्त जी, एक्सीलेंट 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 जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी. मेरा ख्याल है मुझे तो जरूरत नहीं पड़ने की आपको सब आता है, लेकिन लेट्स सी के जो हमारे लोग हैं जो कि ठीक है. सो दे आर बेसिकली 3 मेथड्स: डेफिनेटिव मेथड्स, रेफरेंस मेथड्स एंड फील्ड मेथड. इनको पढ़ाने से पहले बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि ये तीनों है क्या. देखिए जी, एक होता है उस्ताद, होता है ना एक उस्ताद जिसको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है. फिर उस्ताद जो है वो शागिर्द को ट्रेन करता है ना जी. एक शागिर्द को ट्रेन करता है, ठीक है जी. और वो शागिर्द जो है वो फिर आगे से फिर लोगों को ट्रेन करता है. मिसाल के तौर पर मतलब मैं जब आया था FIP में तो मेरे उस्ताद सर आमिर इजाज थे सर, ठीक है. और मैंने इनसे सीखा. उसके बाद मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, तो सर आमिर इजाज जो है वो उस्तादों के उस्ताद हो गए, ठीक है जी. सो बेसिकली ये चीज होती है कि डेफिनेटिव मेथड वो मेथड होता है जो कि मतलब तमाम जो कि नॉलेज मतलब बबलिंग नॉलेज हो जिसका, यानी कि जिसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, जो हम टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है ना जी, वो उसके अंदर वो हर खूबी वो पाई जाए जिसे हम आइडियल कहते हैं, नियर टू आइडियल. वो जो मेथड होता है वो डेफिनेटिव मेथड, ठीक है. और उससे थोड़ा सा मठा, मतलब जैसे मैं थोड़ा सा मठा, ठीक है. वो जो मेथड होता है दैट इज रेफरेंस मेथड. और वो जो मतलब हम आम इस्तेमाल में जो हम कर रहे होते हैं फील्ड मेथड. लेकिन ये याद रखें कि फील्ड मेथड ऐसा मेथड नहीं है कि जिसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन नहीं होती. फील्ड मेथड को भी फील्ड डिक्लेयर करने में मतलब उसकी कोई ना कोई प्रीरिक्विजिट्स है, ठीक है ना. ये याद रखें कि फील्ड मेथड ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर जो हमारे फौजी भाई जो आगे फील्ड में बैठे होते हैं कि वो बस पानी को किसी चीज के साथ मिक्स कर दिया और उसकी कोई एक्यूरेसी, कोई प्रिसीजन, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो वो फील्ड मेथड है. इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. सो मैं इसलिए कह रहा था कि अभी जो लैंग्वेज आएगी वो लैंग्वेज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना जरा मुश्किल है, लेकिन वो उससे पहले मैंने आपको कहा कि जो और ये आपस में अभी आप पढ़ेंगे तो ये सारे आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मिलते जुलते हैं. तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट दे दिया कि डेफिनेटिव मेथड वो आइडियल मेथड होता है, ठीक है ना. और खूबसूरती ये है कि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है. मैंने आपको बताया ना 1867 से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे एनालाइट्स हैं जिनका डेफिनेटिव मेथड अभी तक वो डिसाइड ही नहीं हुआ, क्योंकि हर मेथड जो को वो जिसको वो डेफिनेटिव लेबल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाके कोई प्रॉब्लम निकल आता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे जो छोटी छोटी टर्म्स आएंगी उनको इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी. और उसमें अगर कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो, ठीक है. ताकि मतलब मकसद ये है कि है ये बहुत सिंपल चीजें, लेकिन मकसद ये है कि मतलब हम यहाँ से जब उठे तो वी शुड हैव सम गेन समथिंग, ठीक है. A definitive method is that method which has been subjected to thorough investigation, ठीक है जी. उसके ऊपर बहुत तहकीक हो चुकी होती है, ताकि ये दुनिया में जब डेफिनेटिव मेथड आए तो ये ना हो कि वो चीज वहां से बाउंस बैक हो. Has been found to have no source of inaccuracy and ambiguity, ठीक है जी. inaccuracy मतलब आपको आइडिया है कि जो एक्यूरेट ना हो मेथड, ठीक है जी. And value of analyte obtained by a definite method is taken as a true value, ideal value से, ठीक है जी. ये आप मतलब बहुत सारे कंट्रोल का लिटरेचर पढ़े, बहुत सारी जगहों पे पढ़े चले तो वो आया कि ये डेफिनेटिव मेथड है और इस डेफिनेटिव मेथड से जो है ना हमने ये वैल्यू निकाली है, इट्स आइडियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू. अच्छा, डेफिनेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करने में ना एक एजेंसी है जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी. वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा. उसको कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड.
एक्चुअली हुआ ये कि जब ये मेथड डेवलप हो रहे थे तो इसको मेरा ख्याल है जो आई थिंक सो इट वाज इन बेल्जियम, जिसमें सबसे पहले इसके ऊपर काम हुआ, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे उन्होंने कहा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। ये है 1901 की बात, और ये इसका नाम 1901 से लेकर 1988 तक इसका नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड था। फिर इसको जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं, ये खूबसूरत नाम नहीं है, जिस तरह हमने लालपुर का नाम चेंज करके फैसलाबाद कर दिया और मुंतकबी का नाम चेंज करके हमने चीचावतनी रख दिया, साहिवाल रख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये खूबसूरत नाम है, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके निस्ट कर। तो एक्चुअली एनबीएस और निस्ट दोनों है। निस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और इसका ये है कि जी इट इज बेसिकली अ नॉन रेगुलेटिंग एजेंसी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही है, और इसका बेसिकली जो एम होता है वो ये है कि टू हैव एडवांसमेंट ऑफ मेजरमेंट, साइंस, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी। और ये एक अपनी हैंडबुक जो है ना वो एनुअली पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर वो उस पूरे साल की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, और वेइंग एंड मेजरिंग जो वैल्यूज होती हैं उनको वो पब्लिश करते हैं पूरे साल का, ठीक है। सो दिस डेफिनेटिव मेथड वाज फर्स्ट, मतलब जो इसके पीछे जिस एजेंसी का हाथ है, ये जो भी वो करती है, दैट इज बेसिकली निस्ट और एनबीएस, ठीक है जी। और वही मैंने जो ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी एनबीएस की भी ये रिक्वायरमेंट है कि दैट मेथड शुड हैव हाईएस्ट एक्यूरेसी अमंग ऑल द मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग दैट पर्टिकुलर, ठीक है जी। जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था उस्तादों के उस्ताद वाला, तो दिस इज बेसिकली डेफिनेटिव मेथड, ठीक है जी। अब बात यह है कि इतना मुश्किल मेथड कि जब ये दुनिया में हर लेबोरेटरी में जब जाए तो कोई भी लेबोरेटरी उसके अंदर बिल्कुल जीरो, जिसे कहते हैं जीरो एरर सिंड्रोम, मतलब बिल्कुल उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसको डेवलप करने में बहुत सारी टेक्निकलिटीज चाहिए, मैन पावर चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये डेफिनेटिव मेथड्स को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। और आगे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड और चीज है। गोल्ड स्टैंडर्ड टर्म नहीं यूज होती इसके लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड इज समथिंग एल्स, ठीक है। वो ठीक है आपका कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इज समथिंग एल्स। डेफिनेटिव मेथड इज दैट फॉर दैट पर्टिकुलर एनालाइट। जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं कि जब हम, और गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए वो ये नहीं है कि वो 100% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हो। गोल्ड स्टैंडर्ड में जो इसकी सेंसिटिविटी, और जब गोल्ड स्टैंडर्ड एक डेवलप हो जाता है तो हो सकता है उससे बेहतर एक और मेथड आ जाए तो वो मतलब वो गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाए। सो गोल्ड स्टैंडर्ड इज नॉट अ डेफिनेटिव टर्म, डेफिनेटिव मेथड, ठीक है, ठीक है जी। तो ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, उसके बाद वेल डिफाइंड रिएजेंट्स होने चाहिए, उसके बाद हाईली स्किल्ड पर्सनल होना चाहिए, ठीक है ना, और टू एक्सपेंसिव एंड टेक्निकली डिमांडिंग, ठीक है, जो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। और वही बात है कि इसके लिए जो है वो प्योर रेफरेंस मटेरियल चाहिए। मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, ठीक है ना। और जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करता है डेफिनेटिव मेथड के लिए, उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल कहते हैं, व्हिच आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, ये आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेगी। और वो देखें कि ये बेसिकली जितने भी हमारे रेफरेंस और जो फील्ड मेथड रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन और एक्यूरेसी के लिए जो है वो जरूरी होते हैं, ठीक है ना। और हमारे जो प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल्स और रेफरेंस मटेरियल्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए वी विल टॉक अबाउट रेफरेंस मटेरियल। डेफिनेटली एक अच्छी चीज है, तो वो बाकी चीजों को वेरीफाई करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए जो है ना वो जरूरी होती है। आई होप सो कि वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेटिव मेथड, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह उस्तादों के उस्ताद होते हैं, यानी ये वो मेथड होता है जो कि आइडियल मेथड होता है, ठीक है। और इसी से जो है ना वो फिर हम बाकी तमाम मेथड्स को जो है ना वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं। मेथड्स को भी वेरीफाई करते हैं और मटेरियल्स को भी वेरीफाई करते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। रेफरेंस मेथड की वैल्यू जो है वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो है वो डेफिनेटिव मेथड से जो है ना वो कम होती है, लेकिन रेफरेंस मेथड को बनाने के लिए आपका इसकी वैलिडेशन या वेरिफिकेशन या इस कंपैरिजन जो है वो डेफिनेटिव मेथड से जरूरी होती है। जब तक वो कंपैरिजन में या वैलिडेट ना करे ऊपर वाला मेथड, ठीक है ना जी। सर ने मुझे वेरीफाई किया, वैलिडेट किया, तो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ,
ठीक है जी, अगर ये मुझे वेरीफाई या वैलिडेट ना करते तो मैं नहीं बैठ सकता था। ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस इज लाइक दैट सर। This is absolutely wrong. Wrong example. ठीक है जी, तो एनालिटिकल मेथड विद थॉरोली डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेसी, प्रिसिजन, लो ससेप्टिबिलिटी टू इंटरफेरिंग। अब इसका आप अंग्रेजी जो मर्जी इसकी बना लें, इट्स इंटायरली अप टू यू। ठीक है जी, ये मुश्किल सी अंग्रेजी मैंने लिखी है, लेकिन इसका मकसद यही है कि मतलब इट्स अ बिट लोअर देन डेफिनेटिव मेथड, बट डेफिनेटली इसकी भी एक्यूरेसी और प्रिसिजन जो है वो फिर उनके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिनकी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं इसकी साइट पे गया था तो दे हैव मेरे ख्याल 45 डिफरेंट वो पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर जो है ना रेफरेंस मेथड को जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं, व्हिच इज आई थिंक सो के वी शुडंट मतलब, लेकिन हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जी। सेकंड बेस्ट, ठीक है जी। लेकिन यही एप्रोप्रिएट लिनियरिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी इसकी होनी चाहिए। हाँ देखें ना, इट हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड बाय डायरेक्ट कंपैरिजन विद द डेफिनेटिव मेथड। ठीक है जी, और इसके जो पासिंग टूल्स होते हैं वो मैंने बताया कि 45 के करीब हैं, जिसके ऊपर ये जब वो चेकलिस्ट पूरी होती है तो हम इसको फिर रेफरेंस मेथड करते हैं। यूजेस सेकंड रेफरेंस मटेरियल को वैलिडेट करने के लिए, और जो हमारे कंट्रोल मटेरियल होते हैं, जो हमारे जितने भी कंट्रोल मटेरियल होते हैं उनकी जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं, दैट इज ऑलवेज बाय द रेफरेंस। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल्स। ठीक है जी, डेफिनेटली जो फील्ड मेथड होता है उसकी क्वालिटी और इसको इम्प्रूव करने के लिए। ओके जी, ये सारा फील्ड मेथड की। ठीक है, Is it likewise for the standards as well? Yes. जी बिल्कुल बिल्कुल, I आगे आएगा। स्टैंडर्ड वो बहुत अजीब सा है, वो दोनों घरों में पांव रखे हुए हैं उसने, वो आगे चलते हैं। ठीक है, और फील्ड मेथड वो मेथड है जो कि हम अपने फील्ड में यूज करते हैं, यानी कि अपनी रूटीन लैब में यूज करते हैं, लेकिन ये भी वो मेथड है जिनकी एक प्रिसिजन, एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी होती है, और इसके भी डिफरेंट जो एनबीएस की साइट पे ऊपर ना, इसके भी डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। कि फील्ड मेथड भी जो है इन चीजों को जब तक वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जिस तरह अब एक मिसाल के कैंडिडेट जो है वो हमारे पास आता है तो हम चेकलिस्ट बनाते हैं कि जी ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन के मॉड्यूल में भी पास है, ये क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में भी पास है, और ये मतलब 4-5 जो मॉड्यूल होते हैं उनमें जब पास होता है तो तब हम उसको पास करते हैं। इसी तरह फील्ड मेथड भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस आया और बस मतलब हमने जो भी मेथड आया उसको कर लिया, उसकी भी कुछ प्रीरिक्विजिट क्राइटेरिया, चेकलिस्ट है। जब वो चेकलिस्ट पूरी होती है तो तब हम उसको वी कॉल इट एज अ फील्ड मेथड। ठीक है, और एक चीज होती है जिसे हम आईएसओ कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। इसमें जो फील्ड मेथड को हम करते हैं इसको स्टैंडर्ड मेथड भी वो कहते हैं, रिकमेंडेड मेथड भी कहते हैं, सिलेक्टेड मेथड भी कहते हैं। ये आईएसओ की टर्म्स है, मैंने कहा ये भी यूज होती है इसलिए आपको पता हो। ठीक है जी, definitely it is a method which is used in the routine laboratories for measuring analytes in biological fluids. ठीक है जी। नो अभी हमने बहुत सारी बात की कि जी रेफरेंस मटेरियल क्या होता है। डेफिनेटली वो चीज जो कि हम कहीं पे भी यूज करते हैं, जिस तरह स्टैंडर्ड हो गया, जिस तरह हमारा कंट्रोल हो गया, जिस तरह हमारे रीजेंट्स हो गए, ठीक है ना, तो इनको भी जब हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनको आगे जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो चीज भी मतलब बनती है या जो हम मतलब करते हैं उसको हम रेफरेंस मटेरियल कहते हैं। नो वी विल हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन कि रेफरेंस मटेरियल क्या होता है। सॉरी, ये सर ने भी कहा कलर देख लो, कलर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई जी, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है जी, आईएसओ कहती है कि जी अ मटेरियल और सब्सटेंस वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच आर सफिशिएंटली वेल एस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना, कि जिसमें ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जो कि यूज हो, नंबर 1 कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 2 वैलिडेटिंग मेथड्स, नंबर 3 असाइनिंग वैल्यूज टू मटेरियल्स, कंट्रोल को या स्टैंडर्ड को हम जो वैल्यूज देते हैं, और एवेल्युएटिंग द कंपैरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है ना, बेसिकली इन जो आईएसओ की डेफिनेशन ये है कि इन 4 चीजों को जो चीज मतलब क्राइटेरिया जो फिल कर रही है, दैट इज बेसिकली रेफरेंस मटेरियल। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इन 4 को करे, 2 को भी कर सकती है, 3 को भी कर सकती है। सो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस मटेरियल।
एंड एज वी नो कि रेफरेंस मटेरियल जो है वो मैंने बताया कि वो बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे क्लासिफाई किए गए। जो आपकी बुक टीट्स में है उसमें बेसिकली उसने बहुत खूबसूरती से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना जी, हिस्सों में तो नहीं लेकिन ये कि 4 यूजेस हैं। सॉरी ये आ नहीं रहा, उधर तो जा रहा उनके पास जा रहा। सॉरी जरा मेरे ख्याल वो हमारा यहाँ से आ रहा है? अच्छा उसका लूज हुआ, ठीक है, तुम दोबारा कनेक्ट। सॉरी जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आई होप सो के थिंग्स थोड़ी सी समझ आ गई है बात, ठीक। तो जी, तो जो रेफरेंस मटेरियल होते हैं उनकी मैंने आपको बेसिकली टाइप्स बताई हैं कि दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल, सेकेंडरी रेफरेंस मटेरियल, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल एंड सर्टिफाइड मटेरियल, ठीक है जी। और वही बात है कि रेफरेंस मटेरियल को भी एक एजेंसी मॉनिटर करती है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एंड वेट्स एंड मेजरमेंट्स ये एक्चुअली ये एस्टेब्लिश हुआ था 1929 में, और ये निस्ट के साथ साथ जो है वो करता है। निस्ट का एक्चुअली ये होता है कि निस्ट आपके ना सिर्फ ये चीजें स्टैंडर्डाइज करता है बल्कि वो आपके जो वेट शीट होते हैं ना, ठीक है ना, आप अभी कहीं पढ़ेंगे वो जो वेइंग बैलेंस में तो आपको वो कहता है कि ये वेट जो है वो निस्ट ने अप्रूव किया है। तो इवन आपके जो तराजू के लिए जो वो वजन आते हैं ना वो एक्चुअली निस्ट करती है। लेकिन जो मटेरियल्स की जो प्रोविजन होती है, ठीक है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स होते हैं। और ये 1929 में फ्रांस में ये बनी थी। और इसका एक्चुअली जो नाम है ना वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसको आप कहीं नेट पे देखें तो ये BIPM के नाम से भी ये मशहूर है। और इसका मतलब होता है ब्यूरो इंटरनेशनल डी पॉइंटिस एट मेजर्स, मतलब नॉट टू मेमोराइज, लेकिन आपको पता होगा ये BIPM के नाम। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं ना इनकी एक्यूरेसी, प्रिसिजन और इनको बनाना और इनको छोड़ना और इनको जो भी है, दैट इज बेसिकली ड्यूटी ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। सो वी रिपीट, ये जो नेस्ट है या हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली आपका जितना भी जो आपके वेट्स वगैरह हैं और जितनी भी आपकी वैलिडेशन वगैरह है उनको वो करता है। लेकिन जो मटेरियल्स जो प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना, जो उसकी ये प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल है, सेकेंडरी रेफरेंस मटेरियल है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल है, ये सर्टिफाइड मटेरियल है, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल्स को आप ट्रेस बैक करें तो ये डेफिनेटिव मेथड्स के साथ जाके मिलता है, ठीक है जी। इट इज अ वेल कैरेक्टराइज्ड, स्टेबल, होमोजेनियस एंड हाईली प्योरिफाइड मटेरियल। अच्छा, इसका मजेदार ये होता है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। देखा जिस तरह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है कि यार इस मटेरियल को जब भी आए आप आंख बंद करके, ये इतना प्योरीफाई होता है कि आप इसको पानी में डालें और इसके बाद जो भी आपने सोल्यूशन बनाना है वो आप बनाए। तो इसलिए वो कहते हैं दे आर डायरेक्टली वेट और मेजर्ड टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन whose concentration is exactly known, प्रोवाइडेड कि जिस चीज में आप इसको डाल रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं वो भी मतलब हाईएस्ट प्योरिटी का हो। सो क्यों ही आपको कोई रेफरेंस मटेरियल मिलता है, आप उसको कॉन्स्टिट्यूट करना है, सो उसको आप मेजर करें, वेट करें और उसका एक सोल्यूशन फॉर्म में बनाएं, ठीक है ना, और उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली नोन होती है, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं कि एक और, सॉरी आज काफी सारी नई चीजें आपके पास आ रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं IUPAC। दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेसिकली केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज रिलेटेड टू बेसिस हमारे जो केमिस्ट हैं उनके साथ है। और इसमें मजे की बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो 2 हेडक्वार्टर हैं इसके। मैंने ये पढ़ा तो उन्होंने कहा जी एक सर्दियों का हेडक्वार्टर है, एक गर्मियों का हेडक्वार्टर है, कुछ इस तरह की कहानी थी। लेकिन बहरहाल 2 हेडक्वार्टर्स डील विद देम, वन इज इन द स्विट्जरलैंड ज्यूरिख एंड अदर इज इन द शिकागो।
ठीक है जी। और इनका बेसिकली काम ये होता है कि इट वाज एस्टैब्लिश इन 1919, और इसका काम ये होता है कि जितनी भी हमारे केमिस्ट्री में एडवांसमेंट है, पर्टिकुलरली जो हमारे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट टेबल ऑफ एलिमेंट्स आपको याद है ना कि जी वो सोडियम मेटल एलिमेंट और वो सोडियम पोटाशियम लिथियम यूरेनियम और वो जो जितने भी एलिमेंट्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन और काम भी करती है लेकिन इनको भी बेसिकली वो डील करती है, ठीक है। प्लस प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल की जो प्योरिटी होती है ना, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एंड वेट्स तो करते हैं, लेकिन उसकी जो प्योरिटी होती है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है नेस्ट, ठीक है, ये नेशनल इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी एंड ये IUPAC, ये सारा आपस में मतलब मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। और एंजाइम्स के नंबर, सो मेनी थिंग्स, नाम, हर एंजाइम का नंबर होता है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करती हैं। तो जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है वो मैंने बताया कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की होती है, लेकिन इसकी प्योरिटी जो डिफाइन करना होता है वो AUPAC, ठीक है जी, APC से होती है, ठीक है जी। एंड दे आर फॉर कैलिब्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अननोन स्ट्रेंथ, ठीक है जी, वो मैंने आपको सारा बता दिया। और इनके साथ ना एक लॉट नंबर भी होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, और इसका एक लॉट नंबर होता है, एक हर लॉट होती है उसका एक सर्टिफिकेट होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सर्टिफाई किया और नाउ इट इज अवेलेबल एज अ प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल, ठीक है जी। This method, इसकी वैल्यूज जो है that have to be assigned by definitive method, ठीक है जी। सेकेंडरी रेफरेंस मटेरियल, ठीक है, डेफिनेटली नाम सजेस्ट के इसको हम रेफरेंस मेथड के साथ जो है वो करते हैं, ठीक है जी। और कैलिब्रेट द मेथड, और ठीक है जी। लेकिन ये बेचारा उस तरह नहीं है कि हमने लिया और इसको पानी में डाल दिया और उसको बना लिया, इसके लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जाए। एक चीज है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स, ठीक है ना, ये कोई कजन है प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल का, लेकिन ये वो मेथड है कि जिसको जब वो मटेरियल को जब निकाला जाता है तो ये 100% गारंटी के साथ निकाला जाता है, 100% तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकाला जाता है, यानी इसमें 95% वाला भी नहीं आता, तो 99.99% के साथ निकाला जाता है कि इस मटेरियल में कोई एरर नहीं होगा। ये प्राइमरी में ये फर्क होता है कि प्राइमरी के ऊपर इतनी शायद मेहनत नहीं की जाती, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल होता है ना, वो आगे इसकी यूटिलिटी बताता हूँ क्या, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गारंटी इंश्योर की जाती है, ये बहुत सुपीरियर है, ठीक है जी। ये मटेरियल जो है that none of the residual impurities are present in sufficient quantity to affect, so इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बिल्कुल जो हाईएस्ट प्योरिटी जो होती है, जो कि 99.99 से भी ज्यादा जो प्योरिटी होती है, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल की होती है, और उसके ऊपर बहुत साल लग जाते हैं इसको बनाने में, और ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ये हमारे अक्सर स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल से ये बेसिकली सेपरेट कनेक्शन को, ये बेसिकली जो रेफरेंस मटेरियल है ये हमारे मटेरियल्स को बनाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। वो आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है, ठीक है, वो आगे आ रहा है। ठीक है जी। और इसमें वो मैंने आपको बताया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इसको सर्टिफिकेट देती है कि ये हमने पूरी प्योरिफिकेशन और उसके साथ जो है वो, और मैंने बताया कि दे आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज अदर मटेरियल्स, यानी इवन ये प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल को भी कैरेक्टराइज करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसकी इतनी प्योरिटी है, ठीक है। और इसकी यूटिलिटी ये आप देख लीजिएगा, ये मतलब हमारी रूटीन में ये जो पढ़ा नहीं जा रहा है, स्टैंडर्ड्स कंटेनिंग ड्रग्स ऑफ अब्यूज इन यूरिन एंड ह्यूमन हेयर, और मैडम की जो सारी फील्ड है, मैडम आयशा की, उसमें ये सारा, और जी ह्यूमन बेस्ड स्टैंडर्ड भी इसी से बनता है। एक चीज होती है जिसे सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल कहते हैं। सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल वो होता है कि जब एक कोई भी चीज हमारी स्टैंडर्ड या कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल से वेरीफाई हो जाता है, तो इस तरह नहीं कि उसको अब हम चला देते हैं,
उसको भी वेरीफाई करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है। यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल तो उसको कर देता है सर्टिफाइड, लेकिन उसको प्रॉपर गेट से निकालने के लिए जो एजेंसी जो होती है जो कि इसको फाइनल सर्टिफाई करती है, ठीक है ना, और जिसकी हम ट्रेसिबिलिटी, वो जब एक प्रोडक्ट बन जाता है ना तो उसकी एक ट्रेसिबिलिटी होती है। ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल उसको ट्रेसेबल करता है कि ये वहां से जो है ना वो वेरीफाई हो चुका हुआ है। तो वो जो एजेंसी जो इसको होता नहीं, आप गाड़ी के करवाने के लिए जाते हैं टोयोटा सेंटर में, तो आखिर में एक गेट पास आप लेते हैं, गेट पास जो है ना वो आपको वेरीफाई कर देता है कि बस अब आप गाड़ी लेके निकल जाए, गाड़ी आपकी। तो दैट इज बेसिकली सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स। वो एक मटेरियल है जो कि फाइनली वेरीफाई हो जाता है और जिसको हम यूज कर सकते हैं टू चेक द क्वालिटी, ठीक है, एनालिटिकल मेथड्स, कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड। और इसमें जो जो मतलब सर्टिफिकेट देता है और जो इंस्टीट्यूट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इंस्टीट्यूट ऑफ रेफरेंस मटेरियल एंड मेजरमेंट्स, ये भी एक बेल्जियम का है। आई होप सो कि हमने 4 मेथड्स को मटेरियल्स को डिस्कस किया है। वन इज द प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल, सेकेंडरी रेफरेंस मटेरियल, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल एंड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल की है। और स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल जब मार्केट में आता है तो वो एक उसको मतलब फर्दर करने के लिए, ठीक है ना, एक सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल भी इन कोलैबोरेशन विद दैट, और फिर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है जी। नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज बीन लेफ्ट, ठीक है जी, ये हम इनको तमाम को आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी, बल्कि ग्लूकोज का लेक्चर जो है वो हमारा परसों होगा। तो देयर आर द डिफरेंट डेफिनेटिव मेथड्स एंड रेफरेंस मेथड्स। ग्लूकोज का जो रेफरेंस डेफिनेटिव मेथड है वो है आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका रेफरेंस मेथड जो है वो आइसोकाइनेज मेथड, एंड कॉमनली यूज्ड मेथड जो है वो एक्सोकाइनेज और ग्लूकोज ऑक्सीडेज। अब एक चीज जो आपको हर जगह तंग करती है वो है बेसिकली आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और मैं इट्स द राइट टाइम कि मैं 2 चीजें यहाँ पे जरूर डिस्कस करूं कि व्हाट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एनीबॉडी जो कि थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट दे सके, फ्रॉम सीनियर डॉक्टर माजदा, डॉक्टर कुरत फ्रॉम कोल्ड प्लेस क्वेटा, डॉक्टर सुंबल, डॉक्टर सनम इफ देयर, डॉक्टर सिप्तान फ्रॉम AKU, एनीबॉडी फ्रॉम सुंबल रानी एंड सिप्का, और मतलब कोई भी ऐसा सीनियर, मैंने काफी सारों के नाम ले लिए, कोई जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे सके कि आइसोटोप डाइल्यूशन होती क्या चीज। एनीबॉडी? मेजरमेंट रिलेटेड टू नॉन, ठीक है, सिप्तान बिल्कुल आप उसके नियर हैं। अब एक मैं बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। हम थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, ठीक है जी, बी विद मी। हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं, ठीक है जी। गेम यह है कि एक बॉक्स ले लें, ठीक है जी, बॉक्स ले लिया आपने, ठीक है जी, कोई भी बॉक्स ले लें, और इसके अंदर हम ये गोल बनाने थे, गोल में से बन नहीं सके। ये मिसाल समझेंगे, ये हमारे पास जो है ना मैरून कलर के बॉल्स हैं, ठीक है, और इतने ज्यादा बॉल्स हैं इस बॉक्स के अंदर कि हम इनको गिन नहीं सकते। अब कोई ऐसा मेथड है कि हम इसको जो है ना, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक, लाहौर से होपफुली के माजने हैं। अच्छा, एक बॉक्स में हमने बहुत सारे बॉल्स ले लिए, मैरून कलर की ये बॉल है, और हमने इनको मेजर करना है, और हम इनको काउंट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे काउंट करेंगे, ठीक है जी। अब हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मैरून बॉल्स है। हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम 100 ग्रीन बॉल्स या बॉक्सेस डाल देते हैं, ठीक है, ये हमने 100 इसके अंदर चलेगा जी, ठीक है ना। अब जो मैरून बॉक्सेस हैं या मैरून बॉल्स जो हैं उनकी डाइल्यूशन होगी, ऐसे ही है ना जी, पहले प्योर थे, अब इनकी डाइल्यूशन होगी। अब हम इनमें से जो है ना कोई भी 50 एट रैंडम बॉल्स निकाल लेते हैं, निकाल लिए, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि हमारे पास मैरून बॉल्स हैं, इन्यूमरेबल हैं,
और उन मैरून बॉल पे हमने हमारे 100 ग्रीन बॉल्स डाल दिए और अब हम इनमें से एट रैंडम 50 बॉल निकाल देते हैं। ठीक है जी। अब हम उस जो 50 बॉल हमने निकाले हैं उनमें से हम 100 को ग्रीन देखते हैं कितने हैं, तो ग्रीन पता चलता है कि उनमें से 5। सो रेशो क्या बनी, 50 बॉल में से 5 की रेशो ग्रीन की 5/50, तो 0.1। ठीक है। अब अगर कहीं पर 0.1 अगर ग्रीन बॉल्स हैं तो मैरून बॉल्स कितने होंगे, 0.9। नहीं, ऐसे ही ना जी, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप डाइल्यूशन। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे। ठीक है जी। इसमें होता यह है कि ये जो मैरून बॉल्स हैं ये हमारे एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते डायरेक्ट। हम इसके अंदर कोई भी, मिसाल के तौर पर इस मैरून बॉल में मिसाल के तौर पर कोई भी एक एनालाइट है जिसके में अंदर कार्बन मौजूद है। अब कार्बन इसमें जो है वो कार्बन 12 है, हम इसमें लेते हैं कि हम कार्बन 13 या 14 ले लेते हैं। ठीक है ना। उसको जिस तरह हमने ये हमारे मैरून बॉल जो है ये हमारे एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, और इसमें ये स्टेबल कार्बन है, कार्बन 12, और इसके अंदर हम कार्बन 13 जो है वो हमने ग्रीन बॉल्स डाल दिए। अब इनकी डाइल्यूशन होगी और इनडायरेक्टली हमने इन्हीं बॉल्स को मद्देनजर रखते हुए हमने मैरून बॉल्स को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आइसोटोप का ये मतलब होता है, हमने आइसोटोप इसलिए यूज किया है कि ताकि जो हम मेजर कर रहे हैं जो चीज, ठीक है ना, उसकी डाइल्यूशन हम किसी ऐसी चीज के साथ ना करें कि जो कि उसकी फैमिली की ना हो, जो मैच कर रही हो। और हाँ, तो वो मैच जो चीज करती है वो अगर कार्बन 12 है तो कार्बन 30 उसकी सगी बहन है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे तो वो आपस में नहीं होंगे। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप डाइल्यूशन कि हम इसमें डाइल्यूट करते हैं, इनकी फिर हम रेशो निकालते हैं और उस रेशो को फिर फर्दर हम ऑगमेंट करते हैं विद मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, और हमारे पास फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट आती है वो इतनी एक्यूरेट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लफ्ज याद किया कि वो जो हमारी रेशो होती है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम फिर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का पता ना, वो फिर आप उसको फ्लो करते हैं और उस मतलब जो सारे कॉन्सेप्ट दिया। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द आइसोटोप डाइल्यूशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बहुत अंग्रेजी देखे मैंने बनाई है आपको। ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसको अगर आप उसमें पढ़ेंगे अपने इस कॉन्टेक्स्ट में तो लेकिन मैंने इसके साथ ये सारी अंग्रेजी लिख दी है। ठीक है जी। आप इसको पढ़िएगा और यू विल हैव एन एक्सीलेंट क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द थिंग्स। ये आपको मैंने इसलिए लिखी कि आपको इसको ढूंढने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी सवाल, मतलब मिनट भी हमारे पास 10 मिनट चाहिए। मैम रेंडर ये क्या मतलब है? हाँ जी, रेंडर एक नई चीज आ गई ना। हाँ, अब हमने वो कर लिया कॉन्सेप्ट, इसका आइसोटोप डाइल्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम अपनी हम जब मेथोडोलॉजी काइंडली आपने अगर बात करनी है तो बात कीजिए, उसके बाद काइंडली इसको म्यूट कर दीजिएगा। एनीबॉडी विद एनी? अच्छा मैडम आपकी ग्लूकोज। जी 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 जबरदस्त, एक्सीलेंट। देखें जी, एक क्वेश्चन अभी हम आप जब पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी की सीरीज तो उसमें एक चीज आएगी जिसे हम ट्रिंडल रिएक्शन कहते हैं बार बार। तो बजाय मैंने कहा कि हर जगह पे जाके मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूं, लेट्स हैव तो व्हाट आर द डिफरेंट 4 एनालाइट्स। तो माशाल्लाह सबने जवाब दे दिया। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि जी ग्लूकोज ऑक्सीडेज को हम देखते हैं। ठीक है जी। ट्रिंडल रिएक्शन इज बेसिकली फॉर एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कॉमन है ग्लूकोज में, ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, यूरिक एसिड में, एंड डेफिनेटली एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी। जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप लोगों को तो सब आता है जी। ठीक है जी। चलें जी, ये देखिए ये बेसिक ये रिएक्शन है ग्लूकोज का। ओके। और इसमें ये होता है कि जी जो H2O2 होता है इसको हम एक नॉन कलर्ड कंपाउंड होता है जो कि कुछ भी हो सकता है, 4 अमीनो एंटीपायरीन भी है, 4 अमीनो फिनाजोन भी है। ठीक है ना। उसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कलर्ड कंपाउंड व्हिच इज नोन एज क्विनोन, और क्विनोन अमीन भी से कहते हैं। ठीक है ना।
और ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम इसको डिफरेंट उस पर मेजर करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। सो दिस इज बेसिकली ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है जी। और इसमें जो क्यूनॉन प्रोडक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालाइट व्हिच वी आर इंटरेस्टेड। H2O2 + 4 अमाइनो एंटीफेनिन, पता नहीं कुछ इस तरह कह रहे हैं कि ये ट्रेंड है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जी, एक्सीलेंट ऐसे ही है। वो मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं किया केमिस्ट्री में, क्योंकि वो इंडिकेटर रिएक्शन। ठीक है जी। एक्चुअली ट्रिंडर एक साइंटिस्ट था जिसने जो है पहली दफा ट्रिंडर रिएजेंट को जो है वो किया है। ठीक है जी। गूगल में देखें तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री दी है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन ट्रिंडर। ठीक है जी। और ये मैंने आपको दोबारा दिखा दिया। एंड इट इज द लास्ट स्टेप इन रिएक्शन कॉमन टू अ नंबर ऑफ एनालाइट्स। ठीक है। और वो जो एनालाइट्स, ठीक है जी, एंड मैं बताया कि क्विनोन प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the particular analyte. ठीक है जी। इट इज ग्लूकोज, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सप्लायर्स हैं कि जिन्होंने एक मॉडिफाइड ट्रिंडर रिएजेंट इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें जो फिनोल होता है दैट इज सल्फेटेड फॉर्म ऑफ फिनोल और इट इज 4 टाइम्स मोर एक्टिव देन एक्चुअली दिस फिनोल। ठीक है ना। तो काइंडली आपने म्यूट कर लें आप। काइंडली ये मेरे ख्याल है रहीमिया खान से काइंडली इसको जरा म्यूट कर लें। ठीक है ना। चलें। ठीक है जी। तो एक्चुअली एक मॉडिफाइड ट्रिंडर रिएजेंट होता है जिसमें सल्फेटेड फॉर्म ऑफ फिनोल होता है और इसकी खूबी होती है कि इट इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू द फिनोल। उसकी एक्यूरेसी ऑफ प्रेसिजन को जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है। इट इज बेसिकली यूज्ड इन सम ऑफ द ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रहीमिया खान, थैंक यू। नो मैं फिर सिर्फ स्लाइडें प्रोजेक्ट करूंगा। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन वेरी वेरी डिटेल। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहाँ कहाँ है। ग्लूकोज में है, में है। ठीक है जी। आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक है जी। ये क्रिएटिनिन में भी है, और क्रिएटिनिन जब हम पढ़ेंगे तो ये वो फैमिली है जो कि जिसका अता पता ही नहीं कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। हर चीज इसके अंदर आती है। सॉरी मैं इसलिए गुजार रहा हूं कि ये वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। लेकिन हाँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दे रहा हूं कि आपके पास एक रेडी चीज अवेलेबल हो एक समरी की फॉर्म में। देखें बिलीवर्बन का डेफिनेटिव मेथड अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। देखें कैल्शियम में फिर आ गया आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नो माय फाइनल स्लाइड थोड़ा सा स्लो है। लेट्स सी व्हाट वी हैव स्टडीड। आई थिंक सो कि मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ मेडिकल एजुकेशन का, लेकिन आई हैव लर्न्ड दिस concept from my teacher. We have studied what are qualitative and quantitative methods. Then we have studied what are historic methods, जिसमें हमने chemical method, flame method, gravimetric method, volumetric method. Very slow. फिर हमने एंड पॉइंट
point kinetic, continuous kinetic. Then we studied definitive method, reference method, field method. The last time we lost. Then we have discussed definitive method, reference method, field method, reference materials, primary, secondary, standard, certified, and just flashed methods of and all the Ghabraini. We will inshallah discuss all these methods, every analyte in detail. और ये पता नहीं ये स्लाइड, हाँ ये मेरा जो है ना, ये जो हमारे जूम लेक्चर्स हैं ये उसका शहजादा होगा, ये जो हमारे मेथोडोलॉजी से रिलेटेड. सो ये स्लाइड जो है वो, थैंक यू वेरी मच एंड सर ओवर टू. Thank you very much, Bhagirav. As usual, an excellent talk. Just okay. He has wonderfully explained. जिसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में बांध किया है. A very large topic, and he has discussed in a very nice way. Just to say you some good things. That don't get worried that you have not understood some parts of it. I think you do not know even what is absorbance. Some people do not know what is absorbance, what is calorimetry, what is glucose. Okay, so you will definitely know all these things. You don't know even what is enzyme reaction, what is kinetic reaction. You will know these things with the passage of time. Today was an example of such a lecture, which will be repeated quite often in due course of time. So please don't worry about it. But he has given an excellent summary of all these things. And I know the senior students, by senior I mean who has just passed 6 months, who was in the 7th month of training, he or she has understood it